Hi everyone. So today we have Ashish Junjunwala, who has done CA, CFA, FRM, MBA, and he has worked in Goldman Sachs and BCGL, and now he is also working in Tata Neu. And he has a great profile. Actually, कोई भी देखेगा तो उनका तो ऐसे चक्कर आ जाएगा इतना देख के डिग्रीज, बट हाँ उनका काफ़ी एक्सपीरियंस रही है और ये आज अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करेंगे और आपका जो भी क्वेश्चन होगा वो भी टेकअप करेंगे. तो ऑल अप टू यू आशीष. Thank you, Ghanshyam. Hello, everyone. Firstly, great to meet you guys here. Quick background about me. My name is Ashish Jinwala. Born and brought up in Calcutta. I graduated from St. Xavier's College, Calcutta, quite some time back. Post that, as most of my friends at college would do, we started pursuing chartered accountancy and company secretaryship without even knowing the life में करना क्या है. Then completed that, simultaneously started pursuing my CFA and FRM. Post completing these courses, went to the CA campus, got placed with Wipro and Infosys. However, did not want to join them, went off campus to Goldman Sachs, got selected there, private equity mid office role, Bangalore. But again, the role wasn't very interesting there. I liked the money, the culture, and all, but did not feel that the role was very motivating. So what I did was gave the default option, which we have all like, which was most prevalent there. Gave my CAT 2017, scored a 99.90 percentile, got through IIMs, multiple IIMs. Again, wanted to make a career in finance, so joined IIM Calcutta. At IIM Calcutta, I'm a pass out of 2020, so 2018 to 2020, I was spent 2 years for my MBA at IIM Calcutta. I was an institute ranker there. Was also part of multiple clubs, SEMS Club, the Joka Advantage Fund, as the largest student-run equity fund in India. Apart from that, was also the winner of the City Leader Award 2019, which aims to identify the leaders of tomorrow. In addition to that, did my internship at Gaza Capital, a homegrown private equity firm having investments like Career Launcher, Kinara Capital, again Kinara Capital. Did my also when got a chance to be a part of the dual degree semester IIM cohort. Went to the University of Cologne, Germany for it. Post that was working very briefly with the Sovereign Fund of India in the private equity division. I was looking after the roads, the investment in the roads area. Was working there for 6 months before deciding that I wanted to take up consulting as my career. Joined Boston Consulting Group in 2020. Worked there for 18 to 20 months. Worked across multiple projects and proposals. Was a great learning curve, great experience, and then joined one of the conglomerates in the strategy division and helping them develop a super app. So again, the experience again made have has I've made a lot of mistakes over my career, over my journey. However, in the entire process, I've learned a lot of things. So what I normally do is I interact with a lot of young folks, try to learn a lot of things from them, understand their journey. In case they have any queries, because in queries related to career, related to next steps, related to jobs, related to switches, uh, I try to at least give my perspective to it. I have changed multiple jobs, have appeared for more than 200 interviews across my career. Have been able to crack most of it. Have worked across mid office, back office, articleship, audit, uh, investment banking, private equity, strategy consulting. So probably all the major ambit areas what a normal CA can end up being. At least even if I have not uh, experienced it by working there, I've definitely interviewed for those roles, and majority cases I've been selected. So again, Ghanshyam is doing a brilliant job with like helping you guys post your CA and how to actually get your dream job. But the idea for today's session is that any questions you guys have related to my career journey, related to any doubts which you have in your mind, any specific questions about the companies I have worked with, any specific questions on the industry, feel free to shoot them. Again, the idea is not that I would give you a very standard answer which you would be seeing in all your YouTube videos. Uh, One thing which has worked for me is that I have always give candid advice from my mentors, my seniors. So maybe again, let's say most simplest thing was the day I went to Goldman, right? It was a mid office role. So rather than my seniors or mentors telling me कि भाई तूने तो Goldman छोड़ दिया आग लगा दी, they told me, bro, okay, you have got into a very good firm. It has an amazing brand name. पैसे भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन just ensure कि at the end of the day it's a mid office or back office.
again nothing wrong with it, but just ensure कि if you ever want to do investment banking, you need to work a lot harder from here. तुझे कुछ और भी करना होगा, you need to pick up additional skills. So at least that was very clear with my mentors कि उन्होंने like होता है ना कि again not every chartered accountant will end up being an investment banker or a private equity guy. However, what the idea is that through platforms like what Ghanshyam is doing through our sessions is at least we be very clear कि यार हम जो लाइफ में कर रहे हैं वो कहाँ पर क्या है, एंड जो एक मिसकंसेप्शन रहता है कि ओके लेट्स ज्वाइन, यार यहाँ पर ज्वाइन करते हैं 2 साल में हमें यूएस भेज देंगे या 2 साल में हम फ्रंट एंड हो जाएंगे, तो एनी मिथ्स लाइक दैट आई कैन हेल्प यू बस्ट इट. Career choices, leap of faith and all, मतलब I have done 10 years of my family business even when I had actually done CACS, CFA, FRM, मेरा ग्रेजुएशन हो गया था. Even then we literally called a family meeting to decide कि भाई उसको जॉब में भेजना है कि 10 साल धंधा कर लिया, धंधा ही करना है, राइट. So any of such leap of faith questions की job versus business, जॉब में which career stream should you choose, career stream 2 साल हो गया अब switch कर सकते हैं क्या, कंसल्ट में क्या होता है, आईबी में क्या होता है, पी में क्या होता है, पैसा वर्किंग आवर्स क्या रहते हैं, पैसे कितने रहते हैं, anything which probably you guys have on top of your mind, any area which you guys want clarity, feel free to ask them. Again, I won't give you an answer which will help you soothe things, but definitely I will try and give you the most realistic answer which I'm aware of. लाइक आई हैड ओनली अ क्वेश्चन लाइक आपसे जैसे अब IIM कलकत्ता में जैसे की है ना जैसे 2 साल, तो उसमें एग्जैक्टली आपने क्या सीखा क्या है मतलब उसमें? आई वांटेड टू नो दैट. ओके, एग्जैक्टली लाइक Yeah, बिजनेस so सीख जाते हैं इसमें, क्या सीखते हैं एग्जैक्टली? एक टाइम था कि यूज्ड टू डू अ स्पेशलाइजेशन एमबीएस में कि फर्स्ट ईयर कुछ ओवरऑल पढ़ाया, सेकंड ईयर में एक स्पेशलाइजेशन कर फाइनेंस एंड ऑल या मार्केटिंग में. दैट हैज चेंज. तो नॉर्मली अब क्या हो गया है कि 2 साल का कोर्स है. पहले साल में अक्रॉस वेरियस डोमेन्स की मार्केटिंग, स्टैटिस्टिक्स, एनालिटिक्स, डेटा, डिजिटाइजेशन, सप्लाई चेन, सब कुछ, फाइनेंस, हिस्ट्री, पॉलिटिकल एम्बियंस वगैरह सबके थोड़े थोड़े कुछ कुछ टॉपिक्स होते हैं, बिकॉज फर्स्ट ईयर में वी एंड अप स्टडीइंग 20 to 23 सब्जेक्ट्स. तो वो सब छोटे छोटे सब्जेक्ट्स रहते हैं, लाइक 20 1.5 घंटा की क्लास होती है, 20 क्लास है तो 30 आवर्स के सब्जेक्ट्स होते हैं. तो उसमें वी ट्राई टू कवर एन एम्बिट की बेसिक स्टैटिस्टिक्स आ गई, बेसिक डेटा एनालिटिक्स आ गया. सेकेंड ईयर में वी गो अ लेवल डीपर. हाउएवर देयर आर लॉट ऑफ ऑप्शंस, सो लाइक अक्रॉस द सेकेंड ईयर आपके पास 100 सब्जेक्ट्स रहेंगे, which through a bidding system you can choose कि आपको कौन सा करना है. So again my first year was a common MBA with everyone. Second year पे मुझे supply chain करना था. Again nowhere related to finance or consulting which I have done in my career or which I wanted to pursue. However I had a passion for, मुझे like supply chain बहुत अच्छा लगता था, right? So I chose 4 subjects from supply chain. I chose a few from statistics. I chose a few from finance. So this is how the structure is there. सीखने को क्या है यार, very honestly CA like even CFA वगैरह काफी हद तक theoretical हो जाता है, right? Like for someone हमारा कोई official learning platform या college तो रहता नहीं है CA में, CFA में. तो कोई ट्यूशन अटेंड किए तो सर से जितना भी बोलो कि इंटरैक्टिव क्लास है, इट्स अ 1 to मिनी लर्निंग सिस्टम की टीचर पढ़ा रहा है, कुछ बच्चे क्वेश्चन पूछे तो पूछे, बट नहीं होता, राइट? एंड पीयर लर्निंग तो है ही नहीं. सो व्हाट डिफरेंट इन एमबीए की, पहला बात तो लाइक मुझे हमेशा लगता था कि यार सीए डोमिनेंट है, राइट? क्योंकि मेरे रिलेटिव्स में सबने सीए किया है, फ्रेंड्स सारे सीए थे, तो इतनी तरह की इंजीनियरिंग होती है दैट आई गॉट टू नो आफ्टर गेटिंग इनटू आईएम्स कि भाई हाँ तो हम माइनॉरिटी में हैं, गिन के 500 के बैच में 3 4 5 सीएज हैं. सो लाइक द मेजर लर्निंग्स कम्स फ्रॉम कि यार केस स्टडी बेस्ड टीचिंग होती है. सो पीपल ट्राई टू कि यार ये थ्योरी है, राइट, दिस इज द प्रिंसिपल. तो हमारे सी एग्जाम में क्या होता है, पूछते हैं कि यार व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ दिस से. एमबीए में क्या होता है कि यार वो केस स्टडी देंगे, क्लास में भी केस स्टडी कराएंगे, एंड द आइडिया इज कि नाउ टेल मी कि इसमें कौन सा प्रिंसिपल लगेगा और कैसे लगेगा. तो व्हाट शुड द प्रोपेगेंडा कि देख whoever is the hero of the case study उसे क्या करना चाहिए, इस कंपनी को क्यों किया, कोको कोला ने एक पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी अपनाई जो आज इतना बड़ा हुआ तो क्यों हुआ, टाटा स्टील इतनी बड़ी क्यों है. सो दैट्स द मेजर फर्स्ट मेजर डिफरेंस कि इट्स अ केस स्टडी बेस्ड क्लासरूम लर्निंग. And the second is कि a lot of learnings, at least for me, happened outside the classroom, where we had 500 people from our batch, 500 junior and 500 senior. तो लगभग ये 1500 लोगों से जिनसे मैंने इंटरेक्ट किया 2 साल के दौरान, आई नो 1000 पीपल से मैंने इंटरेक्ट किया, राइट? उनसे सीखने को काफी मिला.
and everyone comes from a diverse background, a different geographical location in India, has a different belief system, has a different past experience. तो जो हमारे ऑफलाइन डिबेट्स होती थी या जो हम नॉलेज एक्सचेंज होता था, तो थियोरेटिकली एमबीए डज नॉट टीच यू एनीथिंग, राइट? मतलब व्हाटएवर थियोरेटिकली इट टीचेस यू, यू कैन प्रोबब्ली लेट्स से 3 मंथ्स में आप किताबों से पढ़ सकते हो, राइट? एंड दैट इज व्हाट कॉलेजेस लाइक स्टोआ, मसाई स्कूल आर डूइंग. बट probably where the bigger learning was कि यार हम we spent a larger chunk of our time outside the classrooms, within our hostels, within on the playgrounds and all. तो वहां पर सीखने को काफी था. एंड अगेन प्लेसमेंट सिस्टम्स होते हैं, तो यू हैव अ समर प्लेसमेंट, यू हैव अ फाइनल प्लेसमेंट. सो देयर कम्स अ टाइम कि आप फुल ऑन अकेड्स पे फोकस कर रहे हो, क्लास जा रहे हो 8 घंटे दिन के, उसके बाद उसकी प्रेप कर रहे हो, प्लेसमेंट्स की प्रेप कर रहे हो, इंटरव्यूज हो रहे हैं, सीवी बन रही है, तो देयर इज सो मच गोइंग ऑन ना, तो वो आपको प्रेशर से हैंडल करना सिखा देता है. सो यू गेट टू लाइक यू हैव वर्कड अक्रॉस द मोस्ट प्रेशर टाइम्स इन योर लाइफ. तो वंस यू सरपास दैट, आपके लिए ये हो जाता है भाई कि ये मैंने झेल लिया ना, दिस इज हेल. 2 महीने 3 महीने होते हैं पीरियड वैसी, नाउ आई कैन फेस एनीथिंग इन लाइफ. सो दिस लाइक एमबीए में आपको थ्योरेटिकल लर्निंग कुछ नहीं मिलती, आप नेटवर्क बनाते हो, आप चीजों जो आपने जो सीखा है उसे इम्प्लीमेंट कैसे करते हो वो सीखते हो, एंड आप लोगों से मिलके उनके नजरिया सीखते हो, विच हेल्प्स यू कीप एन ओपन माइंड. अभी हम जितने भी एटलीस्ट व्हेन आई एंटर्ड बी स्कूल, सब मेरे दिमाग था कि सारे सीएस एक जैसे ही सोचते हैं, राइट? मतलब अगर हमें कोई पीएनएल दे देगा, हम देखेंगे कि ऐसे करना है. द सेकंड थिंग वुड बी यार इसने घपला कहाँ किया होगा. तो एक जो डिफरेंट पर्सपेक्टिव रहता है वो मैंने एमबीए से सीखा कि यार, एंड अगेन दैट केम फ्रॉम इंटरेक्टिंग विद अ लॉट ऑफ पीपल. सो थियोरेटिकली बहुत ज्यादा कुछ नहीं सीखा, लेकिन वे टू लाइफ, वे टू इम्प्लीमेंट योर लर्निंग्स, वे टू हैंडल प्रेशर, वे टू मैनेज टाइम्स. सो ये सब काफी अच्छी लर्निंग्स थी मेरे एमबीएस में. एक चीज मेरे को ये था, जैसे फॉर एग्जांपल एवरीबॉडी कैन नॉट अफोर्ड टू गो इनटू एन एमबीए, वैसे भी बस इसमें काफी इजी नहीं होता है जाना. तो अगर कोई एमबीए नहीं कर पा रहा है कोई चांस, और उसको लर्निंग से मतलब है भाई, उसको टैक्स नहीं है, तो वो क्या कर सकता है? एमबीए का लर्निंग का कोई उपाय है, लाइक इफ देयर इज एनीथिंग दैट ही कैन डू टू कॉम्पेंसेट दैट? Yeah, so like firstly, मतलब बुक्स तो डेफिनेटली रहते हैं. So like probably you can easily get the books जो करिकुलम में यूज होते हैं. Largely the major difference would be coming कि आपको बहुत सारे फील्ड्स लाइक हमारे सीएस में भी टच अपॉन होते हैं, उसमें थोड़ा आप और डीप में गए. सेकंड लार्जर पर्सपेक्टिव इसके, हमारे सीए में कहीं पर भी स्ट्रैटेजी कवर्ड नहीं है, राइट? सो दैट इज एन एरिया वेयर पीपल कैन रीड मोर अबाउट. कि मतलब अगेन किसी को कंसल्टिंग में जाना है, राइट? एमबीए करके जो द आइडिया इज गोइंग टू कंसल्टिंग, so one could start prepping up more about or reading more about strategy की बुक्स पढ़ ली, होता है ना, केस स्टडीज पढ़ लिए. किसी को इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में जाना है, तो हमारा जो एसएफएम या माफा बोल के जो हमारा करिकुलम है, दैट इज नॉट एनफ, राइट? वो काफी थ्योरेटिकल चीज बढ़ा देता है उसमें. लाइक मेजॉरिटी ऑफ द सीएस कांट इवन मेक अ बेसिक फाइनेंशियल मॉडल. तो अगेन इट्स नॉट द स्टूडेंट्स प्रॉब्लम, इट्स द वे द करिकुलम इज डिजाइन, राइट? तो अगर किसी को आईबी में जाना है तो उससे वैल्यूएशन एकदम अच्छे से पढ़ ली, दामोदरन पर वैल्यूएशन पढ़ लिया, फाइनेंशियल मॉडलिंग सीख ली. दिस इज वन पार्ट की आपने थ्योरेटिकली चीज को समझ लिया. सेकंड थिंग इज कि यार आपकी जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट होती है, तो सॉफ्ट स्किल्स, कम्युनिकेशन, पब्लिक स्पीकिंग, आपने ये डेवलप कर ली, राइट? तो दिस इज मोर कि आपने द मोर यू प्रैक्टिस द बेटर यू गेट. अगेन जैसे आप लेते हो लाइक यू मेक पीपल रेडी फॉर जीडी, राइट? So again, that's like what probably people would have learned at their B school. So you are actually trying to replicate or replace what a B school learning could have been. So similarly, more interview-driven approaches, variety of interviews, that can be one thing. And thirdly, your connects. So the more people you interact with, the more you learn from people. That starts to replace what you would have learned at a B school. So आपको बस एक ही चीज करना है, आपको पढ़ना और है अपने लेवल पे, आपको अपनी पर्सनालिटी, आपको अपनी कम्युनिकेशन इंप्रूव करनी है. अगेन कम्युनिकेशन, पीपल हैव अ लॉट ऑफ पीपल हैव अ मिसकम्युनिकेशन कि भाई मुझे फटाकेदार इंग्लिश बोलनी है कि एकदम सामने वाला हो जाएगी, भाई क्या नहीं. कम्युनिकेशन है सिंपली जब तक आप अपनी पॉइंट सामने वाले तक पहुंचा पा रहे हो ना, भले ही वो टूटी फूटी इंग्लिश में हो, इंग्लिश हिंदी मिक्स में हो, खाली हिंदी में हो, यू गुड टू गो, राइट? तो आपकी कम्युनिकेशन उतनी ही लेवल की होनी चाहिए. अगेन given the way the CA curriculum is designed, or even the engineering curriculum is designed, majority people are not able to do that. And thirdly is ki meet, interact with people, learn from their experiences. Like LinkedIn is a good like good medium. However, like nowadays सारे colleges की meet होते हैं,
यार जाओ, मतलब नहीं जानते हो ना, वहां जाके 5 जन से मिलो, 5 से 50 से मिलोगे। तो आज के दिन में बी स्कूल या लाइक मेरे IIM कैलकाटा का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि मुझे एक कंपनी के बारे में जानना है या एक कंपनी में मुझे अपनी CV रेफर करनी है, आई विल जस्ट गो टू लिंक्डइन एंड सी कि भाई IIM कैलकाटा का उसमें से कौन है। मैं अपने डायरेक्टरी में जाऊंगा, उस बंदे का फोन नंबर निकालूंगा, उसे एक व्हाट्सएप ड्रॉप करूंगा कि यार मैं आप 2014 बैच के हो, मैं 2020 बैच का हूँ, मुझे ये समझना था आपसे, तो आप मुझे यार समझा दो 10 मिनट निकाल के, या मेरी CV रेफर कर दो या गाइड कर दो। एंड 99% ऑफ द केसेस में पीपल रेवर्ट बैक बिकॉज वो IIM कैलकाटा कनेक्ट है या IIM कनेक्ट है। तो वो कनेक्ट नॉट सबसे नेसेसरली बड़ा कम्स बेनिफिट है फ्रॉम IIM। आप नेटवर्किंग लिंक्डइन से बनाओ अपने पर्सनल। एग्जैक्टली। नेटवर्किंग सबसे बड़ा बेनिफिट। जहाँ तक बात है मेरे को लगता है नॉलेज का, नॉलेज आदमी यहाँ से निकाल लेता है, नेटवर्किंग हमको लगता है सबसे बड़ा वो है। नॉलेज भी आदमी थोड़ा बहुत कर लेगा इधर उधर से करके, रिसर्च करके, पर नेटवर्क नहीं बना सकता है ये जल्दी से, जो कि MBA में आपका बन, एग्जैक्टली। जैसे यहाँ पर भी नेटवर्क ही बन रहा है, एग्जैक्टली। GS प्राइम में नेटवर्क ही बन रहा है एग्जैक्टली, जो कि इजी नहीं होता है। कोई भी कर सकता है, मतलब वैसे चाहे तो, मतलब आपका एक एक दो तीन चैनल है जैसे यूट्यूब में, आपको रिकमेंड कर सकता है, जो कि मतलब बिजनेस के स्टडीज के ऊपर बनाता है, कि वो काफी काम आ सकता है आपका MBA रिलेटेड। या सो मतलब यूट्यूब वीडियो से ज्यादा आई फॉलो फिनशॉट्स करके एक है, अगेन अ कपल ऑफ IIM अहमदाबाद पास आउट्स ने चालू किया है। उन्होंने वो जो भी चीज समराइज करते हैं, इट्स अमेजिंग। सेकेंडली देयर इज न्यूज़पेपर और ऑनलाइन न्यूज़पेपर कॉल्ड दी कैन। तो अगेन वो कैन क्या करती है कि जो भी सबसे लेटेस्ट स्टार्टअप चल रहा होता है, जो भी लेटेस्ट न्यूज चल रही होती है, जो भी लेटेस्ट ट्रेंड चल रहा होता है, वो उसको एकदम बेसिक लेवल पे डिकोड करती है। तो दैट इज रियली हेल्पफुल। केन है स्लाइटली अ पेड वर्जन है कि वो महीने के 500-700 लगते हैं। थर्ड इज यार अगेन अ few of the IIM Ahmedabad pass out started this called a junior VC, अविरल भटनागर की है। सो इवन दैट इज रियली अमेजिंग, वो भी बहुत अच्छा काम करते हैं। इन एडिशन टू दैट द मॉर्निंग कॉन्टेस्ट एंड द कैप टेबल, ये लाइक 4-5 तो चीज जो नाम मैं आप एक बार फॉलो थोड़ा करता हूँ। हमको मैसेज कर दीजिएगा, हम ग्रुप में भेज देंगे। अच्छा अच्छा नाम श्योर बताइए, श्योर, ये बहुत काम आने मैं वाला है। आपको डाल दूंगा। ये हमको पर्सन कर दीजिएगा, तो ये बाद में फिर से तो हम लोग की रिकॉर्ड हो रही श्योर। है, ये कभी काम आने वाला है। बाकी आप लोग भी पूछ लो, मेरे को एक दो तीन और था आपका, जैसे एंटरप्रेन्योरशिप डेवलप जरूरी है कि MBA जाके ही होता है, कि ऐसे भी आदमी कर लेता है एंटरप्रेन्योरशिप, आपको क्या लगा? नहीं नहीं, कि तो मैं तो जब मैं 10 साल धंधा करके, तो लाइक मैंने वाज व्हाट 10-11 इयर्स ओल्ड, मैं हाँ अपने पापा की गद्दी पे बैठना चालू कर दिया था। हाँ तो हाँ ऑन द लाइक ये पहला बात, तो एंटरप्रेन्योरशिप ना कभी भी क्लासरूम के अंदर डेवलप नहीं होती है जितना बोल लो। तो आज आई डाउट कि अब मतलब अगेन यू विल सी अ लॉट ऑफ एंटरप्रेन्योर्स आर IIT ग्रेजुएट, हाँ हाँ बिकॉज यार IIT में अगर 1000 जन का बैच है तो 500 स्टार्टअप कर रहे होते हैं। कुछ ना कुछ वो 4 साल में एडमिशन हो गया, वो कुछ ना कुछ कर रहे होते हैं। तो वहां से कुछ ना कुछ आइडिया क्लिक हो ही जाता है। सो मेजोरिटी ऑफ द पीपल, आपको दिख रहा होगा कि यार सचिन बंसल ने फ्लिपकार्ट बनाई, हम्म, लेकिन उसने एक बेसिक लेवल पे 3 स्टार्टअप फेल की होगी पक्का से, हम्म, राइट? तो आप कोई भी IIT बॉम्बे के ग्रेजुएट से मिलोगे तो वो कर लेते हैं एक दो स्टार्टअप। तो हम्म, फर्स्टली यू डोंट लर्न एंटरप्रेन्योरशिप आप कोई भी एम्बियंस या एनवायरनमेंट है जहां पर बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप की बातें होती है, अपॉर्चुनिटी है, तो हो सकता है। लाइक मोस्ट ऑफ अस कम फ्रॉम फैमिली बैकग्राउंड, फैमिली हम्म, बिजनेस बैकग्राउंड, राइट? हम्म, आप अपने धंधे में जाके बैठो 6 महीना, राइट? मतलब हाँ हाँ मैंने 10 साल बैठा है, तो हम्म, मैंने वहां पर जो सीखा उसका कोई मुकाबला नहीं है, राइट? नो MBA कुड हैव टॉट मी दैट। हम्म, अगेन आई जो स्टार्टअप्स बनाते हैं वो हम्म, लाइक ऐसा नहीं हो कि क्लासरूम में उन्हें सिखाया गया है। व्हाट दे डू इज कि वो अपने विंग्स में हैं, तो वो 4 दोस्त में मिलके या कुछ आइडिया सॉल्व करते हैं या कुछ क्रिएट करते हैं। उन्होंने हम्म, कुछ बनाया, अपने ही हॉस्टल के बच्चों से टेस्ट करा दिया उसको कि यार देखो आपको मजा आ रहा है क्या प्रोडक्ट में, उस पे डेवलप करना चालू कर दिया। एंड वो बनाते बनाते वो एक बड़े स्टार्टअप बना लेते हैं, या एटलीस्ट जो एक बेसिक लर्निंग होती है एंटरप्रेन्योरशिप की वो हो जाती है। तो द रीजन अ लॉट ऑफ एंटरप्रेन्योर्स कम फ्रॉम IIT या जो भी SRCC इस टाइप के जो कॉलेजेस से आते हैं, बिकॉज वहां पर वो एनवायरनमेंट ऑफलाइन मिल जाता है कि बहुत लोग बनाने की कोशिश कर रहे होते हैं, तीन हम्म, चार लोग में अलग अलग स्किल्स मिल जाती है, तो लोग ग्रुप बना के कुछ बेसिक सा बना लेते हैं, अपने ही दोस्तों को ट्राई करवा देते हैं। तो अगर आपको जैसे अगर आपको अभी एक एडटेक ऐप बनाना है, राइट? तो यू हैव टू फाइंड पीपल कि भाई कौन टेक्नोलॉजी बनाएगा, कौन मेरे लिए ऐप डेवलप करेगा, कौन डेटा देखेगा, ये सब। तो उसमें आपको बहुत मेहनत है, बहुत कॉस्ट रिसोर्सेज लगेंगे, राइट? आप अगर यही एक IIT का बच्चा होगा, उसके विंग में सब मिल जाएंगे, उसको उसको बस एक व्हाट्सएप डालना है हम्म, कि रात को 9 बजे कैंटीन में मीटिंग कर रहे हैं, उसके पास पांचों रिसोर्सेज पहुंच जाएंगे कि चल भाई साथ में कुछ बना लेते हैं। हम्म, और वो हंसी हंसी में बना लेते हैं, राइट?
तो मतलब बहुत सारे ऐप्स हैं आज के दिन में यूनिकॉर्न बनने वाले हैं, या हाँ हाँ होता है ना कि 100 मिलियन की वैल्यूएशन हो गई। सो मोस्ट ऑफ द आइडियाज हैव ओरिजिनेटेड ओवर अ कप ऑफ टी, ओवर अ कप ऑफ, होता है ना, ग्लास ऑफ बियर एंड ऑल। सो वैसे रहता है। तो एंटरप्रेन्योरशिप के लिए फॉर्मल एजुकेशन आई एम अ वेरी स्टॉन्च बिलीवर कि नहीं चाहिए। इट्स जस्ट दैट यू हैव टू गेट एक्सपोज्ड टू आइडियाज द मिल जाता है, स्टार्टअप थोड़ा एनवायरनमेंट। स्ट्रक्चर्ड वे मिल जाता है आपको इससे। मेरे एक और जैसे एग्जैक्टली। डाउट रहता है एंटरप्रेन्योरशिप में, मैंने देखा है एक आदमी से होता नहीं है, यू नीड अ टीम एंड बिजनेस पार्टनर भी बहुत जरूरी है। तो बिजनेस पार्टनर निकाल इजीली मिलता नहीं है, तो ये आप कैसे ये सब सिखाया होगा कि बिजनेस पार्टनर कैसे निकाल सकते हैं, कौन मेरा बिजनेस में बन सकता है, तो क्या चीज हम लोग देख सकते हैं और कैसे वो मतलब उसमें कैसे वो आ सकता है जो अदरवाइज हम देखे नहीं कि भी दो आदमी तो चाहिए एटलीस्ट, नॉट मोर देन दो आदमी मिनिमम चाहिए। तीन आदमी काम बिगाड़ सकते हैं पर दो आदमी तो चाहिए, हम देखा है दो आदमी काम निकाल देते हैं अच्छा खासा। तो कैसे वो कर सकते हैं वो चीज को? यार एब्सोल्युटली, देखो यार, ये तो प्रॉब्लम, अगेन आई कम फ्रॉम अ सोल प्रोप्राइटर बिजनेस की। हाँ मेरे हाँ पापा देखते थे, फिर मैं देख रहा था, फिर भैया देखते हैं। तो हाँ, दिस इज अ प्रॉब्लम वी फेस इन डे आउट इसलिए की मारवाड़ी में भाई, ज्यादा होता है बोलना नहीं चाहिए। कि यहाँ पर आज, मेजोरिटी से हाँ। मारवाड़ी जो सोल प्रोप्राइटर में ज्यादा खुशी है कंपेयर टू गुजराती। आई डोंट नो रॉन्ग राइट बट दिस इज द थिंग। तो ओके। यार ये तो है कि ट्रस्ट इश्यूज रहता है। फर्स्टली आप चाहोगे कि आप किसी को पार्टनरशिप में ले रहे हो तो वो बंदा सेम, एटलीस्ट फ्रॉम अ बिजनेस पर्सपेक्टिव, की वो स्टेटस बराबर हो, कि आप उसके साथ डे इन डे आउट करोगे। अगेन नॉर्मली मेजोरिटी फैमिली बिजनेसेस थोड़े पुराने टाइम से है, 20 साल हो गए, 25 साल हो गए। तो सडनली उसमें आप 50% इक्विटी देना नहीं चाहते हो किसी को। हाँ तो हाँ दिस इज द रीजन की मेजोरिटी मारवाड़ी फैमिली डोंट एंड अप बीइंग अ पार्टनरशिप फर्म। हाँ हाँ लेकिन इन केस आप कुछ नया कर रहे हो, राइट, तो प्रॉब्ली लाइक फर्स्ट थिंग इज हैज टू बी क्लियर। आप अगर कुछ बना रहे हो ना, आप उसके बारे में एकदम, आप यू हैव टू बी हेल बेंट कॉन्फिडेंट कि भाई आई बिलीव इन दिस। लाइक जैसे आप ये जीएस प्राइम चला रहे हो, राइट, हाँ हाँ तो द फर्स्ट पर्सन हु हैज टू ट्रस्ट कि भाई दिस आई एम क्रिएटिंग वैल्यू हियर, आई एम हाँ प्रोवाइडिंग स्टूडेंट से, मैं अगर 100 रुपए भी ले रहा हूँ, मैं हाँ उन्हें उससे बहुत ज्यादा का दे रहा हूँ, हाँ एंड वन डे आई विल स्केल इट अप। हाँ जिस दिन हाँ आपको ये विश्वास है ना, कि आपको क्लैरिटी है कि मैं 2 साल तक ये क्लैरिटी। देख रहा हूँ, या मुझे ये करना है पूरा 2 साल, ये क्लैरिटी तो नहीं सारे होता पर मोटा रिस्क हैं। मोटी एक मॉडल रहता है दिमाग में, फ्रेमवर्क चलता है कि ये करना है, वो धीरे धीरे और इम्प्रूव एग्जैक्टली। हो जाता है। तो वो हाँ जितना आप क्लियर होगे, हाँ आपको लाइक व्हेन यू इंटरैक्ट विद अ लॉट ऑफ पीपल, यू विल रियलाइज कि यार उसमें से कोई ना कोई वैसा चीज करने का सोच रहा होगा, कोई बिजनेस एवेन्यूज खोज रहा होगा, कोई बिजनेस वेंचर खोज रहा होगा। कुछ होंगे जो पैसा लगाने चाहते हैं, टाइम नहीं है, कुछ के पास है पैसे नहीं है, टाइम नहीं, टाइम है। तो हाँ हाँ आप उसमें आइडेंटिफाई करो कि यार आप जो पार्टनर खोज रहे हो उससे आप क्या स्किल सेट चाहते हो, राइट। हम्म, मतलब अगर आप घनश्याम हो, अगर आप ही और एक घनश्याम को ले आओगे तो क्या फायदा, राइट। बात आपके पास सही है। कुछ स्किल्स हैं, राइट। हाँ आप अगर आप बहुत ही टेक एक्सपर्ट नहीं हो, सो हाँ द मोमेंट आप खोजोगे यार मैं टेक एक्सपर्ट को ले आऊंगा, तो अभी लेट्स से इंस्टेड ऑफ जूम आई विल स्टार्ट डूइंग इट ऑन एन ऐप, राइट, कि हम्म, जिसको जब जो देखना है ऑटोमेटिक लॉगिन्स क्रिएट हो रहे हैं। तो दैट्स द आइडिया, एंड अगेन ऑल द बिजनेसेस टेक टाइम कि वो ग्रेजुअली धीरे धीरे ऊपर जाता है, एज एंड व्हेन बिजनेस मैच्योर्स ये बेनिफिट होता है। सो लाइक टू गेट अ बिजनेस पार्टनर, फर्स्ट हैव क्लैरिटी कि यार आपको क्या बनाना है, व्हाट आर यू ट्राइंग टू क्रिएट, what is your value prop, what is your roadmap for the next 2 years, 5 years, and then when you interact with people, try to pitch your ideas. Be very sure ki what are the skill set you are looking in the person you want to hire or want to recruit as a partner, and अब वो इतना फिल्टर खोल दोगे ना, वो गिन के 5-7 लोग मिलेंगे, हम्म, एंड उसमें एक दो तो तो पक्का कहाँ ही से मिल खोजे जाएगा कि और खोजने के लिए कहाँ पर हम लोग को क्या क्या प्लेटफॉर्म यूज यार कर सकते हैं? यार ये लिंक्डइन है, बट एनीवेयर कहीं पर भी जहां पर भी 50 पढ़े लिखे लोग या 50 बिजनेस वाले अक्यूमुलेट हो रहे हैं ना, चाहे वो बीएनआई हो सकता है, चाहे वो लायंस क्लब हो सकता है, जहां पर भी जमघट है 50 लोग का, जहां आपको मौका मिल सकता है कि आप बताओ कि मैं क्या बना रहा हूँ, मेरी ड्रीम क्या है, मेरा विजन क्या है, आप चले जाओ वहां पर। मतलब आप 10 जगह जाओगे ना, 8 में तो आपको बोलने का मौका नहीं मिलेगा। लेकिन मतलब एटलीस्ट मेरा बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीव है कि मतलब जॉब्स हो, इंटरव्यूज हो, इस टाइप के पिचेस हो, यार आप 100 दे दो, आपको एक में क्लिक होना है, राइट। आपको एक पार्टनर चाहिए, तो एक आप ही चाहिए। 99 जगह रिजेक्ट भी हो गए ना, तो कोई दिक्कत फिर नहीं है। तीन चार आ अगर जाएगा वो तो 100वां डिवाइड टाइम, भी करना पड़ेगा ना, ज्यादा तो चाहिए नहीं, एक हाँ, ही चाहिए। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। तो आप 10 जगह पिच करोगे, 9 में रिजेक्ट हो गए, कहीं ना कहीं से तो मिल ही जाएगा यार। ट्रस्ट कैसे बिल्ड होता है, ये बात का टाइम लगता है ट्रस्ट बिल्ड होने में? टाइम टाइम लगेगा यार, ये मतलब हाथों हाथ का काम नहीं है। टाइम लगेगा। टिल द टाइम वो ट्रस्ट बिल्ड नहीं होता है, द ओनली पॉसिबल इज कि आप सेफगार्ड बिल्ड करो, कि यार कोई कुछ बहुत बड़ा डैमेज नहीं कर दे आपके, लाइक
वो पार्टनर जा रहा है तो बहुत ज्यादा डैमेज नहीं हो जाए आपको। एंड हम्म, सिमिलरली दैट पार्टनर शुड ऑल्सो बिल्ड किया, कल घनश्याम सुबह उठ के मुझे बोले कि भाई तू आज के बाद पार्टनर नहीं है, तो उसके लिए सेफ गार्ड बिल्ड हो। सेफ गार्ड एंड रखना एट द पड़ेगा। सेम टाइम सेफ गार्ड हो, डिपेंडेंसीज ज्यादा नहीं हो कि हम्म, आज लाइक आई एम नॉट श्योर, एक अपनी कक्षा बोल के आई केम अक्रॉस ऑन लिंक्डइन, हाँ हाँ राइट? हाँ वो हाँ। 5 लोग मिलके इतने अच्छा काम कर रहे थे, अमन तो वहां दत्तरवाल का पर शायद, हाँ आई राइट थिंक राइट सो, हाँ, हाँ हाँ। वो इतने अच्छे काम कर रहे थे एंड उसमें ट्रस्ट डेफिसिट हुआ, तो नाउ द ओके, एंटायर ये नहीं थिंग इज पता इन था। शैम्बल्स, राइट? तो ये तो नहीं पता वही था, सब एक चीजें। लॉस हुआ था उनका, ये सुना था भी था बीच में। हाँ, तो कुछ। एंड दिस इज लाइक एक इतना स्केल अप करने के बाद होता है ना ओके, कि एंड अगेन ट्रस्ट ओके, वोंट बी जस्ट विद योर पार्टनर्स, वो स्टाफ्स के साथ थोड़ा ट्रस्ट डेफिसिट हुआ तो चीज हैम्पर हो गई। तो ओके। जितना ज्यादा आप सेफगार्ड्स बिल्ड करोगे, जितना ज्यादा आप ओपन ट्रांसपेरेंसी रखोगे, उतना ज्यादा चांसेस कम रहता है कि थिंग्स गो डाउनहिल। मेरे का मेल फीमेल का डीओ बहुत अच्छा चलता है आजकल। पता नहीं क्यों हम ये चीज नोट किया है। इट वर्क्स वेरी वेल, मतलब बहुत जगह में ये दो तीन चीजें हाँ? आई तो थिंक वो स्किल सेट भी लोग डिफरेंट लाते हैं, राइट? मतलब कहीं हाँ, पर ज्यादा तो करके उससे यही काफी होता बेनिफिट है मिल कि जाता जो स्कूल का फ्रेंड्स होता है वो बहुत अच्छा पार्टनर्स बन जाता है। डिपेंड करता है आपका ना, है। स्कूल कॉलेज है ना, वो ट्रस्ट ऑलरेडी क्रिएटेड है बिकॉज योर ऑलरेडी गाइस हैव स्पेंट 2 years टुगेदर या 5 years टुगेदर, तो ट्रस्ट बिल्ड हुआ है, अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हुई हुई है, आपको खाली प्रोडक्ट बिल्ड करना है। फिर तो बहुत ईज़ी हो जाता है, अगर स्कूल का कोई फ्रेंड्स वगैरह होता है, अब उस बहुत तरीका बहुत का आराम हो। हो जाती है। ये चीज़ एक, हाँ, ये चीज़ आप लोग क्या क्वेश्चन्स आप लोग भी टेक अप कर लीजिए। मेरे को काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा था, इनसे बहुत सारा क्वेश्चन्स था इसलिए। ठीक है। आपका चैट बॉक्स में भी आया तो आप एक-एक करके ले सकते हो स्टार्टिंग से जो भी आया है ना। Hi अ, Ashish. हेलो पीयूष। Hi, hi. Thank you so much for sharing insights about your career journey and your education journey and about IIM journey and networking, entrepreneurship. My name is Piyush Agrawal and I am a qualified chartered accountant and I am associated with GS Prime as a mentor and I'm also engaged in other mentorship programs. And I have a couple of questions for you. So I want to know more about your journey, about the Boston Consulting Groups, how you cracked the interview, what kind of projects you handled there, what was the learning, and what was the reason you left the Boston Consulting Group. And second questions, if someone has to enter into consulting or MBBs or top consulting organization, what can be possible ways without getting an MBA degree from IIMs, and what can be the learning or the possible way or routes to get into consulting without getting an MBA? Sure. So Piyush, first one I got on the first part. Thank you for the question. On the first part, I got placed with the Boston Consulting Group from IIM Calcutta itself. So the interviews are normally case studies where the partner would give you a problem statement. The problem statement can be as simple as कि आपके घर के बगल में एक टायर पंक्चर का दुकान है, उसके 2 साल से प्रॉफिट घट रही है, तो नाउ हेल्प अस आइडेंटिफाई कि प्रॉफिट क्यों घट रही है और हम कैसे ठीक करेंगे इसको। And then based on a structure, a framework, again this is very common material which is available on the internet. विक्टर चैंग बोल के एक बंदा है, उसके वीडियोस हैं कि मतलब अगेन दिस इज अ प्रॉब्लम स्टेटमेंट। तो अब इसमें एक स्ट्रक्चर और फ्रेमवर्क को यूज करके वी हैव टू कम टू अ कंक्लूजन कि भाई इसकी प्रॉफिट क्यों घट रही है, कि इसका कॉस्ट बढ़ गया, रेवेन्यू कम आ रही है, लोग कम आ रहे हैं, रिपीट कस्टमर्स कम है, साइकिल की क्वालिटी कम हो गई है, ये पहले कोई सर्विस प्रोवाइड करता था अब नहीं कर रहा है। तो अगेन ये पूरे एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से हम एक सोल्यूशन तक पहुंचते हैं। एंड ड्यूरिंग द एंटायर टाइम वी आर कंटिन्यूअसली इंटरेक्टिंग विद द इंटरव्यूअर, क्योंकि उसने तो एक ही स्टेटमेंट बोला है, तो 2 मिनट बाद मैं पूछूंगा सर ये इसकी दुकान कहाँ पर है, कितनी बड़ी साइज की दुकान है, कितना रेवेन्यू घटा है, कितनी प्रॉफिटेबिलिटी घटी है। सो ये फ्रेमवर्क से इंटरव्यू रहते हैं। सो नॉर्मली आपके 2 इंटरव्यूज होते हैं, आपको 2 yes चाहिए होते हैं पार्टनर से टू गेट थ्रू द टू गेट द ऑफर। सो नॉर्मली आप अगर 2 yes मिल जाते हैं तो यू गेट एक्सेप्टेड, 2 no मिल जाते हैं तो यू गेट रिजेक्टेड। तो इन केस आपके पहले 2 इंटरव्यूज में देयर इज अ यस, अ पार्टनर सेज कि ओके दिस कैंडिडेट इज क्वालिफाइड, द सेकंड वन सेज कि नहीं यार इसमें मजा नहीं आया, तो आपका थर्ड इंटरव्यू होता है विच इज द डिसाइडर। तो आई वाज लकी एनफ कि मेरे 2 इंटरव्यूज में हो गए थे। एट बीसीजी आई वर्कड अक्रॉस 4 to 5 प्रोजेक्ट्स। द फर्स्ट वन वाज विद अ पब्लिक सेक्टर बैंक, जहां पर हम उनकी डिजिटाइज कर रहे थे पूरी ऑपरेशंस को, उनके टारगेट सेटिंग प्रोसेस को। द सेकंड वन वाज विद अ laminates manufacturer where we were trying to increase the EBITDA for them, कि करंटली इनका एबिडा का 100 करोड़ है, तो हाउ डू वी मेक इट 200 करोड़ ओवर द नेक्स्ट 2 to 4 years। फिर एक दो छोटे मोटे प्रोजेक्ट्स थे और एक बड़ा प्रोजेक्ट मैंने किया था एक दारू की कंपनी के साथ, वेयर वी आर लेवरेजिंग कि हम डेटा को लेवरेज करके कि एक मोहल्ले में जो आपका दारू का ठेका है, उस मोहल्ले में किस तरह के लोग रहते हैं, उनका स्पेंडिंग पावर कितना है, उनकी एवरेज एज क्या है,
तो लाइक अगेन आप अगर कोई भी इन केस यू गो टू अ बियर शॉप, आपको पता भी नहीं चलता है, आपको मतलब कुछ लोग तो जाते हैं मन बना के कि मुझे यही खरीदना है, कुछ लोग ओपन माइंड से जाते हैं। तो हाउ डू यू प्रोबब्ली हैव योर ट्रेड स्कीम्स, या उससे कैसे इंसेंटिवाइज करो कि ये पर्टिकुलर बेचा जाए ऑन द बैक ऑफ कि यार वहां पर इस तरह के लोग हैं, वहां का स्ट्रक्चर ये है। So this was largely my work at BCG. I was there for around 20 months. Why I left BCG? यार बीच में a lot of opportunities were there, a lot of funding was happening. So consultants at the end of the day outside बैठ के कंपनी की मदद करते हैं. So मुझे जाना था यार, अब मुझे कंपनी के बाहर नहीं बैठना है, मुझे कंसल्टिंग करनी भी है या स्ट्रैटेजी बनानी है तो खुद की कंपनी के लिए बनानी है. सो द आइडिया वाज कि यार आइदर स्टार्टअप में कोई सीईओज ऑफिस वगैरह ज्वाइन करूं जहां पर स्टार्टअप को बड़ा करने में हेल्प करूं, ऑल्टरनेटिवली कोई कुछ नया बना रहा है, कोई कंपनी कुछ नई कर रही है तो उसमें जाके लगाऊं. और इस बार मतलब आई डोंट मतलब बहुत बार एज अ कंसल्टेंट क्या होगा ना कि आपकी भी टाइम लिमिट्स है, राइट? आपको एक प्रोजेक्ट 2 महीने में कंप्लीट करना है. सो आप किसी को मोस्ट सिंपलेस्ट वुड भी कि आप अपने बिजनेस में जितनी सोचोगे, जितनी एफर्ट मारोगे, ये करोगे, बाहर में अगर कुछ लिमिटेशंस आएंगे तो थोड़ा कम हो जाता है, राइट? तो अब मुझे पता है कि यार मैंने कुछ स्ट्रैटेजी बनानी है अपने कंपनी के लिए, तो आई हैव टू इम्प्लीमेंट इट, आई हैव टू एंश्योर इट सक्सेसफुल. सो वो ओनरशिप थोड़ी बढ़ जाती है एज कम्पेयर टू बीइंग एन एक्सटर्नल कंसल्टेंट. सो दैट्स वाज द रीजन. एंड वेरी ऑनेस्टली कंसल्टिंग में जितना भी बोलो वर्क लाइफ बैलेंस काफी मेस्ड अप रहता है. तो जस्ट वांटेड कि थोड़ा उस लाइन पे भी थोड़ा इंप्रूव हो. So like coincidentally, a few of the projects I was working on was very hectic. So I thought कि यार maybe it's time to start focusing on the work life also and health also. So that's why I decided. And coincidentally, that time, like when I decided to move on from BCG, a lot of opportunities were there in the market in terms of startups, conglomerates, in terms of various profiles that was available. I was lucky enough to land a job which I'm currently in. I love, like I literally love this job. The people here are amazing, and I get to learn everything. Largely I do what a consultant would have done. It's just that I do it for my own company now. एक बार के लिए ना ये मीटिंग में आ जाएगा, 1 मिनट में खत्म हो जाए, 40 मिनट का चलता है ना. एक बार फिर से आप लोग सब जन आ जाइएगा, ठीक है? सॉरी फॉर इंटरप्शन. Sure. एक बार सब जन आ जाइएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन